سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہو. اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کی اس تیسری تاخرات میں اس کی عبادت کرنے کی اللہ پاک نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. بہت مختصر بات کروں گا، آپ حضرات یہ اگر توجہ ہو تو، کیونکہ بات کرنے والوں کے پاس جو ہے اصل میں کوئی عنوان نہیں ہوتا. بیان کرنے والے سوچ کر آتے کہ ابھی آج یہ ٹاپک پر بات کرنا، یہ عنوان پر کیا ہے مجھے بات کرنا، سوچ کر آتے. لیکن مجمع جن فکروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ ذہن کے اندر عنوان تبدیل کر دیتا ہے. تو آپ جیسے فکروں سے بیٹھیں گے اللہ وہ باتیں میرے ذہن میں ڈالے گا اور جس پر اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے گا. تو آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، بس آپ لوگ اگر توجہ سے بیٹھیں گے، بات کو سنیں گے، انشاءاللہ کچھ مزہ آ جائے گا. انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ. مختصر بات 1-2-3 گھنٹے کر لیا تو بس نہیں، بیٹھتی سب ماشاءاللہ پورے جذبے سے تھے. بہرحال بیانات تو ہم ماشاءاللہ سنتے ہی رہتے علماء اکرام کے ذریعے سے، ان تاخراتوں کے ذریعے سے بارہا جوڑ کر یہی بات ہم لوگوں کو سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. اللہ پاک بہانے تلاش کرتے ہیں کہ میرے بندے کو میں کیسے مغفرت کروں، کسی بھی بہانے سے. بلکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کوئی آدمی کوئی سامان خریدنے کے لیے بازار گیا اور چیز کو خرید لیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے. انہوں نے بولا کہ بھی 200 روپے ہے، 500 روپے ہے، 1000 روپے ہے. تو بولے ٹھیک ہے پیک کر ڈالو. آپ کے جیب میں پیسے رکھ کر آیا تھا، بھول کر یہ جیب میں ہاتھ ڈالا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اس جیب میں پیسے رکھ کر کیا بھول کر کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں. ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے. تو جیسے اس جیب میں ہاتھ ڈالے تو پیسے نہیں ملے، ایک دم شاک تو یہاں دیکھتے ہی تسلیم لوگ ادھر ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اسے جب تھوڑی دیر کا جو صدمہ لگا نا کہ پیسے نہ ہیں، بھول کر انہیں جیب میں ہاتھ ڈالیا سو اور نہ ملنے کی وجہ سے جو صدمہ ملا، علماء فرماتی ہیں اس کی تھوڑی دیر کے صدمے پر اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اب بولو اللہ بندے سے کتنا پیار کرتے ہیں. حقیقت میں اور آپ اللہ کو بھول کر زندگی گزار. کوئی جمعہ پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ میں حق ادا کر دیا، کوئی یوں سمجھ رہا ہے کہ میں فجر تو پڑھ لے کو کام پر آتا ہوں، کوئی یوں سمجھ رہا ہے کہ 1-2 روزے رکھ کر سمجھتا ہے کہ میں حق ادا کر دیا. صحابہ تو گردن کٹا کر بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے. دن بھر کوڑے لگائے جاتے تھے، رات بھر کوڑے لگائے جاتے تھے. صبح جو ہے گرم زمین پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم زمین پر ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا. میرا بولنا آسان ہے، آپ لوگوں کو سننا آسان ہے. ابھی جو گرمی چل رہی ہے غالباً یہ 10 روزے سے جو گرمی شروع ہوئی ہے، اتنی شدید گرمی، اللہ اکبر، ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ہم دو پیار ہو گئے تو کی بار ہو رہا ہے تو صورت چروتی کیا کہتے وہ حالت ہو جا رہی ہے. بیٹھے جگہ بیٹھ جا رہی ہیں، سوچ جگہ سو جا رہی ہیں. روزہ لگ گئے کہ بھیگا تو نہیں حضرت لپٹ لے گا، یہ حالت ہوگی. اب ذرا سوچو گرم زمین پر، بلکہ یہاں ہماری کم از کم گرمی زیادہ رہتی تو بھی کم از کم ہوا کبھی ٹھنڈی رہتی ہے. عرب کے علاقوں میں گرمی تو گرمی، ہوا بھی گرم. ایسی گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا. رات میں کوڑے لگائے جاتے تھے، دن میں گرم زمین پر گھسیٹا جاتا تھا. اب کبھی رات میں کچھ تھوڑی دیر کا وقت ملتا
सजदे में सर रखकर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह से यूँ कहते, या अल्लाह मैंने तेरे नाम का हक अदा ना कर सका। अब ज़रा सोचो, जो एक कोड़े खाने के बाद भी, इतनी मुशक्क़तें उठाने के बाद भी कह रहे हैं कि हम तेरा हक ना अदा कर सके, हम समझ रहे हैं कि 2-4 नमाजें पढ़ करके मैं हक अदा कर डाला। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखो, अल्लाह को हालात वाला दीन पसंद नहीं। हालात आ गए बंदे पर, वो अल्लाह की तरफ दौड़ कर आगा, हाँ, कभी फिर को नहीं देखे। हालांकि वो भी आना है, फिर भी अल्लाह कबूल करते हैं, लेकिन बड़े फरमाते हैं हालात वाला दिन अल्लाह को पसंद नहीं। हालात आ गए तो चले गए, माहौल का दिन भी पसंद नहीं, सब कर ले रही मैं भी पढ़ ले रहा हूँ। आदत का दिन भी पसंद नहीं, बचपन से आदत मुझे नमाज पढ़ के उसके से पढ़ लेता से। मजबूरी का दिन भी अल्लाह को पसंद नहीं, मेरा ओनर मारता है, दुकान में हूँ, फैक्ट्री में हूँ, काम पर हूँ, नहीं गया तो नमाज को डांटता है, इसलिए नमाज वाजा तो नहीं। अल्लाह को तो कुर्बानी वाला दिन पसंद है। हमारा दिल चाहे कि ना चाहे, अल्लाह उसके रसूल ने कहा है कि इस पर कामयाबी है तो बस चलना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, दिन का मसला ऐसा है कि जो दिल चाहता है वो हमारा दीन नहीं चाहता, जो दिल चाहता है वो हमारा दीन नहीं चाहता, और जो दीन चाहता है वो मेरा दिल नहीं चाहता। हमारा दिल चाहे कि ना चाहे, मुझे अल्लाह उसके रसूल की बातों पर चलना है, बस यही दीन है। नहीं समझ में आए तो कर लेंगे, नहीं समझ में आए तो छोड़ डालेंगे। आसान आसान चीजें करने के, मुश्किल काम के लिए तो मौलवी साहब ही ना कर लेती, क्या मसला है वे। तो हमारे ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक वाक़या सुनाते थे। एक इलाके में एक आदमी का इंतकाल होगा, तो उसकी बीवी जो है ताने मार मार करके, जोर जोर से चीख मार मार कर रो रही है। अजय आप लोग क्या है, इतनी सारी चीज़ें तैयार कर रखे, जिंदगी में क्या बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए थे, अचानक आप दुनिया से चले गए। इतनी कीमती क्या है, कपड़े भारी भारी कपड़े सिला कर रखे, एक दिन भी इसे पहनकर बाजार में नहीं घूमे, आप वो छोड़कर कफन पहनकर जा रही हैं, आप ये बकिया कपड़े कौन पहनती। और उसका एक रिश्तेदार करीब बैठा था, तसल्ली दिया, भाभी आप परेशान होने को मैं संभाल लेता। हजरत बोलते थे, फिर वो औरत क्या है जोर से रोने लगी। अल्लाह कहे इतनी कीमती क्या है सवारी लेकर प्लानिंग ना करे थे कि फला फला टेम्पो फला जगह घूमने जाना, लेकिन एक दिन भी उसे आन कर को भी नहीं गए। आप वो छोड़ दो, आपको जनाजे में मौजन साहब की सवारी में बैठने को जा रही ना, उन्हें तसल्ली दे रहा, भाभी आप क्या टेंशन लेने को मैं संभाल लेता हूँ। ऐसे ही जो चीजें गिनाती जरे इन्हें संभालता जरा। भाभी सोचे क्या बोले तो माठी मिला समट ले रहा ना, उन्हें होशियार होकर बोली, नबी ये तुम्हें गए सो गए, दुनिया का खर्च रखता को मेरे सिर पर चले गए ना, ये इतना खर्च कौन जी फेरते सो। तो उन्हें बोला देखो भाई इतने सारी जिम्मेदार है कि मैं एक ही जना उठाना क्या, ये सब मैं उठा ली, ये तुम्हें पूरे मिलकर उठाओ गए। ऐसा नहीं है, आसान जो समझ में आ जाए वो ले लेंगे, मुश्किल काम आए मौलवी साहब आहिना भी कुछ ना अल्लाह पैदा करे सो नहीं। मेरे दोस्तों, हर एक की जिंदगी में उस सतह का दीन आना जरूरी है जिस सतह का दीन मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, चाहे वो हमें समझ में आए कि नहीं आए। चाहे हमें बोलो मेरी बात समझ में आ रही नहीं, सबको समझ में आए कि नहीं आए, मुझे बस वो करना है जो अल्लाह के रसूल ने बतला दिया है। फिर चाहे वो मुझे समझ में आए कि ना आए, हम ना समझ में कब बोलो नहीं आता सो, क्योंकि जिस वक्त हमारे साथ बैठने उठने वाला उस टाइप का नहीं रहा तो हमें वो बातें भी समझ में नहीं आती। अगर अच्छे लोगों से हमारा ताल्लुक रहा, अच्छे दोस्तों से ताल्लुक रहा, तो हर बात मेरे दोस्तों रहबरी कर लेती। इसलिए उलमा फरमाते कहे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस बयान करके फरमाते, दोस्त के दीन पर होता है। दोस्त बोलो, दोस्त के दीन पर होता है। पहले तो भी लोग रिश्ते देखने आते थे, तो पहले जमाने में शायद माशाल्लाह आप लोग जानते हैं, शुरू में लोग आपको क्या करको है भी नहीं, क्या रखो है, कैसा है लोगो। आजकल रिश्ते देखने तो पहले पूछी क्या बोलो इसके दोस्तान कैसे ही गए, क्योंकि तो मालूम कितने ज्यादा थे, तो भी अगर दोस्तान बिगड़े हो तो चंद दिनों में पूरा सफन सफा ले जाकर बेच जाता है, क्या कर पाता है, हार जाता है। पहले माशाल्लाह अब तो हर लोगों सुधर गई, हमारे नौजवानों को देखो माशाल्लाह इतना सुधर गए। पहले तो भी क्या है उड्डे बैठ को बैटिंग खेलते थे, अब तो इतना सुधर गए कि बैठे जगह ऑनलाइन में खेलने पड़ी, इतना सुधर गए माशाल्लाह। अपने आप को मुसलमान कह रही। मेरे दोस्तों ने ये धोखा लग गया है, धोखा। 2-4 इबादतें करके 2-4 नमाजें पढ़ के हम समझ रहे हैं कि हमारा काम बन गया। नहीं, जरा देखें जो पढ़ रहा हूं कि वो किस हालत में है। रमजान जैसा मुकद्दस महीना हमारे सामने जा रहा है, कितने हमारे नौजवान ही 5-6 दिन पहले की पहली तासरात की बात बता रहा हूँ,
इतवार के दिन की। एक साथी को हमारे एक नौजवान थे, दोस्त हमारे मिले, वो पूछा क्या कि माशाल्लाह फ्रेश था। मैं बोलिया क्या भाई दोपहर हो गया, मेरी हालत ऐसे, तू देख माशाल्लाह फ्रेश है ना, क्या कुछ हिस्सा तो ऐसा छू। बोले रोजा नहीं, बोले मेरे घर का किराया 3000 रुपये हजरत को। बोले तेरे घर का किराया 3000 रुपये है तो रोजे से क्या ताल्लुक भाई? बोले मैं रोजा रहा तो कमा नहीं सकता, अब नहीं कमा तो किराया कौन बनती, इसके लिए रोजा नहीं रहता, काम को जाता हूं, कम से कम किराया तो भी बन ले तुम। अल्लाह, कितना बड़ा धोखा लग गया लोगों को, जरा सोचो। जिस सेहत अल्लाह ने कहे से दी है कमाने पर, अगर वो सेहत छीन ले तो बोलो ये कमा सकता है? जाकर देखो अस्पतालों में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं, जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। वो मस्जिदों अल्लाह बुला रहा था, वो नहीं आते थे, आज वो आना चाह रहे, अल्लाह नहीं बुला रहा। वो आना चाह रहे, अल्लाह नहीं बुला रहे। कई दिनों के बाद 17 साल गालिबन हमारी मस्जिद में मैं जिम्मेदारी करते हुए गुजर गए, ये रमजान को 17 साल हो गए। एक बुजुर्ग को देखा कि हम मस्जिद में आकर बैठे हैं, पेशाब की थैली लगाकर बैठे हैं। मैं पूछा, बहुत दिनों के बाद देखा उनको, पूछा क्या चीचा माशाल्लाह बहुत दिनों के बाद, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ भाई अब तो जरा सुधरी, नहीं आना चाहता था, दिल ने मानिया, आज जाना तो हट कर ले को आगा। अल्लाह बुला रहा था, हमारा रुख इस तरफ नहीं था, अब हम जाना चाह रहे, अल्लाह नहीं बुला रहे। एक अल्लाह वालों को देखा, वो बाजार में खड़े होकर रो रहे हैं। उनसे किसी ने पूछा हजरत ये बाजार यहाँ खरीदारी करने की जगह है, आप बाजार में खड़े होकर क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि देखो मैं अल्लाह को और बंदों से मिलाने के लिए आया हूं। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले अल्लाह तो तैयार है, बंदे तैयार नहीं है। अल्लाह तो तैयार है बंदों से मिलने के लिए, सुलह करने के लिए, लेकिन कौन तैयार नहीं है? बंदे तैयार नहीं है। वो मशगूल है, अपने कारोबार में मगन है, खेती बाड़ी में, अपने बिजनेस में, दुनिया को संवारने में फंसे हुए हैं, लेकिन तैयार नहीं है बंदे। अल्लाह तो तैयार है। फिर उन्हीं अल्लाह वालों को देखा कि एक मर्तबा खबरस्तान में बैठकर रो रहे, आंसू बहा रहे। लोगों ने कहा हजरत का आप कभी बाजारों में रोते हैं, कभी खबरस्तान में, आप क्या हुआ? बोले वही मामला, बंदों को अल्लाह से मिलाने का। फिर अब क्या हुआ? बोले अब बंदे तैयार हैं, अल्लाह तैयार नहीं। बंदे कब्रिस्तान में, अब जाने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन आजकल लोगों को वहां जाने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा है। हमें देखे एक आदमी को कब्रिस्तान में उतार ले, कुछ ही उतार को उसका मोबाइल बजे तो बाजू आ गए, आपको फोन में पूछ रहा है कितना हो रहा है। अरे दफना वो ऐसी जगह है जहां पर सहाबा के रोंगटे खड़े हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। मुसलमान को वहां भी इबरत नहीं मिल रही, वहां भी लोगों को इबरत हासिल नहीं हो रही। बोलो, मैं कोई सुनी सुनी बात नहीं बता रहा हूं, कानों से सुनी हुई, आंखों से देखी हुई बात आपको बता रहा हूं। वहां पर लोग कै लगाकर हंस रहे हैं, वहां पर दुनिया की गुफ्तगू हो रही है, दुनिया की क्या वहां बिजनेस की बातें हो रही है। वो जगह थी जहां पर लोग कम से कम आखिरत को याद करते, ये सोचते कि भी आज लोग इसे कंधों पर उठा कर ले आए हैं, एक वक्त आएगा मुझे भी इसी तरह लोग उठा कर ले आएंगे, खबर में डालकर चले जाएंगे, इसे वो तक एहसास नहीं। आए दिन मेरे दोस्तों ये खत्म हो रही है, हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है। खबर देने वाले मेरे और आपके नबी ने सच्ची खबर बता कर गए हैं, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है। जिंदगी से रोजे छूट रहे हैं, मामूली किराया बनने के वजह से, मामूली घर चलाने की वजह से रोजे छोड़ दो। अट्ठे गट्टे खड़ा करे तो 10 जने को लुढ़का डालता है, लेकिन रोजा क्या करते, सिर खुजा ले। अरे जिस अल्लाह ने सेहत दी है, अगर वो अल्लाह पाक सेहत छीन ले तो आप बिस्तर के हो जाएंगे। कैसी कैसी नियामतें अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर बरसाई है, हमने कभी उसका शुक्र अदा किया? आज देखो गजा के हालात कैसे पड़े हुए हैं, इफ्तियारी ठीक से उनको नहीं मिल रही, सहरी नहीं मिल रही, भूखे प्यासे बच्चे रोजा रख रहे। शुक्र करो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने हमें कितनी सही सालिम रखा है, कैसी कैसी नियामतें खिला रहे हैं, लेकिन शर्म आती है हमें, हम मुसलमानों पर इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बावजूद अपनी इफ्तियारी की दस्तरखान की स्टेटस कहे, वो अपने स्टेटस में लगा रहा है, दस्तरखान के फोटोज अपने के इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। 5 साल का बच्चा आंसू बहाता हुआ अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ चेहरा उठा के कह रहा है, या रब हमने सुना है जन्नत में खाना बहुत मिलता है, आप हमें मौत दे दीजिए, ये भूख हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ताकि हम जन्नत में जाके खूब सैर होकर खाएं। मुसलमान अपनी स्टेटस के सहरी के इफ्तार के स्टेटस ये फोटो जो है अपने स्टेटस में लगा रहा है, इंस्टाग्राम में अपलोड कर रहा है, यूट्यूब में, फेसबुक में, मुसलमानों के वो वीडियो बनाकर डाल रहे हैं, फला होटल को गए थे, देखो आप भी इफ्तारी को यहाँ आकर।
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس امتی کے سینے میں میری امت کا غم نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج ہماری حالت دیکھ لیں ذرا اٹھا کر کیا کس حالت میں ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں. تھوڑی بہت کام کر کو سمجھ رہی کہ میرا کام بن گیا. نہیں, دھوکہ لگ گیا ہے. دھوکہ کسی کو مال کا دھوکہ, یہ تو ہو سکتا ہے سدھر جائے. دین کا بھی لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ میں دیندار ہو گیا. حضرت کیا مسئلہ نہیں. کیسی کیسی نعمتیں اللہ دیے ہیں. رمضان جیسے اس مقدس مہینے میں بھی لوگ معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دو. معمولی بہانوں سے. اللہ نے صحت دی ہے, جوانی دی ہے. 80 سال کے ایک بزرگ, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, ان کا آپریشن ہوا. 8 گھنٹے ان کو آئی سی یو میں رکھ کر ان کا کیا ہے آپریشن کیا گیا. جب انہیں ہوش آئی تو ڈاکٹر جو ہے ان کی بل لگایا 8 لاکھ روپے. اب جب بل لگائے تو وہ بزرگ جو ہے اس رسید کو, بل کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہانے لگے. تو ڈاکٹر صاحب بولے کہ شاید یہ بل ان کے لیے زیادہ ہوگی 8 لاکھ, چلو کچھ ہم مشورہ کر کے ان کی تھوڑا بل کم کر دیں گے. تو آ کر بزرگ کو تسلی دیا, آپ پریشان مت ہونا, آپ اطمینان رکھو, ہم آپس میں مشورہ کر کے تھوڑا اور کم کر دیں گے. وہ مسکرا کر بولے آپ تو 8 لاکھ لگے ہیں, اگر 10 بھی کر دے تو مجھے دینے کی طاقت ہے. پھر انہوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو, پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں, میرا مالک ہے, میری عمر 80 سال ہو گئی ہے. 80 سال سے میرا مالک میرے اس دل کو سنبھال رہا ہے, کبھی اس نے اس کی بل نہیں پوچھی. آپ 8 گھنٹے میرے دل کو سنبھالے اور 8 لاکھ پوچھ رہے ہیں. اللہ کی ایسی کتنی نعمتیں میرے اندر ہے, یہ سوچ کے رو رہا ہوں. کبھی سمجھ میں آیا؟ ایک گلاس پانی پیے باہر نہیں نکلیا تو منہ ہو گیا رہتا ہے. 9 مہینے 15 مہینے ہو گئے رہتے. دیکھو ایک گلاس پانی پیے باہر نہیں نکلا, کتنی پریشانی. ایک صاحب کو دیکھے پریشان بیچارہ, مسجد کے پاس آیا, بولے کیا وہ قصہ, کیا بھی نہیں, آجا سر میں ذرا چندہ کر لیتا ہوں. کیا ہوا؟ والد صاحب کو ایڈمٹ کر کو ہی صرف ایک وقت کا بیت الخلا کرانے کے لیے 6000 روپے لے رہی. دن میں کئی مرتبہ ہو جاتا ہے, اگر نہیں نکلیا تو اتنی تکلیف کے مرنے کے قریب پہنچ جائے. کتنی نعمتوں کو ہم اللہ کی ٹھکرائیں گے, ذرا سوچو. کیسی نعمتیں اللہ نے ہم پر برسائی ہے, لیکن آج ہماری ناشکری ہی ناشکری. اس رمضان کے مقدس مہینے میں بھی لوگ جو ہے روزے سے دور ہیں, مست ہو کر زندگی کر رہے ہیں ایسے جیسے مرنا نہیں ہے, اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے, اللہ کے سامنے جانا نہیں ہے, کھڑے ہونا نہیں ہے, حساب و کتاب دینا نہیں ہے. بے فکر ہو کر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں, بے فکر. مرے بسا دیکھیں گے لوگ, کون دیکھے آخرت کی زندگی. یہ سب سنی سوچنا نہیں میرے دوستوں. ہم میں سے ہر ایک کو ایک دن جانا ہے, لیکن کب جانا ہے, کیسے جانا ہے, کوئی نہیں جانتا. کاش کے لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ مرنے کا ٹائم ٹیبل ہے, معلوم نہیں کون کیا کیا تیاری کر لیتا. کسی زمانے میں ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا افلاطون. انہیں اللہ سے دعا کرے, یا اللہ آپ ایسا کچھ کرو کہ مجھے یہ بتا دو کہ میری موت کب اور کیسے ٹائم پر آئی ہے. کبھی کبھار اللہ کو کچھ چیزیں دکھا دیتی, اسے یہ چیز معلوم ہوئی کہ فلاں ٹائم پر فلاں دن فلاں وقت میں میری موت آتی. اب انہیں کیا کریا, اپنا دماغ دوڑایا اور اپنے جیسے 100 مجسمے 100 پتلے بنایا. کپڑے کی دکانیں میں لگے رہتے. دیکھو آج لوگوں کو یہ تک نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا دین ہے, کیا بے حیائی ہے. مستورات کے کپڑے ایسے بے حیائی کے ساتھ سینے لٹکے ہوئے ہیں, ہر دیکھنے والا خیالات میں گم ہو رہا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کر رہے ہیں. چلو بھائی پوچھو علماء اکرام سے پوچھو تو صحیح کہ بھی کیا ہے, کیسا کرنا ہے, کیسے چلانا ہے, کیا کرنا ہے. ایک آدمی دکان کھولنے کے لیے جرا حضرت عمر نے روکا, کہاں جا رہے ہو؟ بولے تجارت کا دکان, نیا دکان شروع کر رہا ہوں. انہوں نے روک کر کہا کیا تم نے دکان کا دین سیکھا؟ نہیں. تو جاؤ پہلے دکان کا دین سیکھو, پھر آ کر دکان کھولو. ہمیں نہیں. اللہ تو انہیں اپنے جیسے 100 مجسمے 100 پتلے بنایا اور یہ سوچ کر بنایا کہ فلاں ٹائم کو اسرائیل علیہ السلام آتی, اندر انٹری ہوتے ہی دیکھتی فلاں آدمی کی روح نکالنا. اب میرے جیسے 100 آدمی ہی کس کی نکالنا سوچ لے کھڑی ٹائم ہو جاتا ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا, انہوں واپس چلے آتے. نہیں ایسا جانے کا تھا تو ہو, جانے کا چھوڑو, میں آپ کو ہوں آفر ضرور تمہارے بلی کسے چلے جانے ہوتے, پہلے بولا تھا اسے چلا رہا بابا.
मैं से तंग आ गए चले गए बीवी पूछे तो शौहर को ले जाओ हजरत परेशान हो गई मैं शौहर को पूछो बीवी को बीवी पूछो शौहर को अब उन्हें ये सोचकर जो है अपने जैसे 100 मुजस्समे बनाकर बीच में खामोश साइलेंट बैठ गया वक्त जब मुकर्रर था उसकी रूह निकालने का इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर एंट्री हुआ अब बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है लिखा है किताबों में इज़राइल अलैहिस्सलाम आए अब देख रहे हैं निकालना 100 एक की रूह और यहाँ बैठी 100 आदमी अब अलग अलग नहीं सबके चेहरे एक ही हैं जिसकी रूह निकालना है वैसे 100 आदमी बैठे हैं सबके चेहरे देखते गए मुस्कुराकर हंसना शुरू कर डाले अब कौन था भी एक आदमी मेहनत पर वो कहता भी चीज बनाया अब बोले जा बाबा चीज देख इन्हें बनाया सो कैसी है वो उन्हें जा खड़ को देख को हंसना शुरू कर डाले तो बनाने वाला क्या होता है तब चल बढ़िया था क्या जी इन्हें देख लगा तो हंस रहा ना क्या भी कर डाली वो पूछता ही नहीं अब जैसे इज़राइल हंसना शुरू करे इन्हें परेशान होगा क्या ही ऐसा हंस रही ना इज़राइल बोले अफलातून तूने सब ठीक किया है एक काम गलत किया है तो उसको खड़ेगा क्या करे इसमें ऐसा गलत काम पूरा तो सही करूँ ना इधर बोले एक काम गलत ये किया है कि सब बोलते नहीं तो अकेला बोलता है चल मेरे साथ किसी को छोड़े क्या सबको मालूम है आए दिन हमारा टाइम फिक्स है बल्कि एक मौलाना बयान में बता रहे थे हर आदमी जिंदगी बसर करने वाला हर दिन वह किसी ना किसी बहाने से कब्रिस्तान के सामने से गुजरता है एक दिन में एक मर्तबा या तो उस दुकान से गुजरता है जहां इसका कफन रखा हुआ है तो गुजरता जरूर है लेकिन इसे एहसास नहीं है कि एक दिन जाना है अगर जाना है सबको मालूम है सबकी तमन्ना है पीले को पड़ा तो उसे उठा बिठा पूछो कई बार क्या बा कैसा मरना चाहता बा आज रिलीज हुआ ना गाना सुन लग मरता क्या तो उन्हें भी बोलता जोश में नहीं हजरत ईमान पर मरना चाहतूंगा हर एक की तमन्ना है कि भाई ईमान पर मरना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं चाहता कि जिंदगी ईमान के साथ गुजारे कोई ये नहीं चाहता बस जिंदगी गुजर रही है तो ये मुकद्दस महीना जो आता है वो हमारी प्रैक्टिकल के लिए आता है ट्रेनिंग के लिए जैसे कहे रमजान में रोजे रह के तो आदमी कहे गुनाह देखने से बचता है आंखों से गुनाह नहीं करता जबान से झूठ नहीं बोलता इसलिए उसे एहसास है हाँ भाई मेरा रोजा है कानों से गलत नहीं सुनता उसे एहसास है मेरा रोजा है आदमी अगर कहे इसलिए बड़े फरमाती जिंदगी गुजारो रमजान जैसी तो कहे मौत आएगी आपकी ईद जैसी पहले गुजारो तो सही रोजा रखकर भी लोगों का झूठ आम है रोजा रखने के बाद भी कहे लोगों के कानों से गुनाह हो रहे हैं आंखों से गुनाह हो रहे हैं जिस्म के आज़ा से गुनाह हो रहे हैं लेकिन ये एहसास नहीं है कि भी कब मौत आ जाएगी क्या रमजान गिने चुने दिन हमारे सामने रमजान के हैं वो दिन पूरे होंगे वो भी नहीं मालूम कि उससे पहले हमारी जिंदगी खत्म होगी वो भी नहीं मालूम लेकिन जाना तो ये हम में से हर एक को है बाप भी जाएगा बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा बेटे के कंधों पर बाप का जनाजा हम में से अदल बदल हर एक को जाना है लेकिन क्यों ना हम ऐसी जिंदगी गुजार कर जाए कि हम मरे तो जमाना याद रखे मरते ही लोग ये नहीं बोलना छोड़ रहा आज जाकर मोहल्ले का कचरा पाक हुआ ऐसी जिंदगी से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे हम मरे तो जमाना याद रखे कि भाई फला एक आदमी था वाह कैसी जिंदगी गुजार कर ले बल्कि हदीस मुबारका में यूं आया जब कोई अल्लाह का नेक बंदा मरता है वो जमीन रोती है जहां पर बैठकर वो अल्लाह की इबादत करता था वो आसमान के फरिश्ते रोते हैं जो इसके अमाल को ले जाकर उसका बदल लाया करते थे मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम में से हर एक को इसकी जरूरत है कि हम जिंदगी ऐसे गुजार कर जाएं कि हम जाएं तो कहे जमाना रोता रहे हम हंसते हुए अल्लाह की बारगाह में जाएं हम कैसे जाए बोलो हंसते हुए अल्लाह की बारगाह में जाएं आए दिन हमारी जिंदगी की कम हो रही सो बढ़ रही नवे कम हो रही सो ये चुपके हमें बर्थडे मना लेते सो लेकिन आए दिन हमारी जिंदगी कम होने को जा रही सो पैदा हुए दिन से कहे आज हमारे 20 साल 30 साल होगी तो क्या बढ़ गए सो कम हो गए सो 60 साल की जिंदगी को तो 30 साल चले गए तो नहीं हमें बढ़ा ले तो हजरत तुमने मालूम नहीं हमने बहुत कुछ आता है हजरत तुमने क्या मालूम एक साहब बोले ऐसा क्या कि बहस कर ले खड़े थे एक चंदे वाले से बोला छोड़ो भाई कहीं बहस कर ले खड़ी पूछना जिम्मेदार पूछ ली कमेटी वाले पूछ ली और इमाम साहब भी पूछ ली तुम्हें एक बहस कर जय तुमने क्या जी मालूम तुम्हारा गांव के पूरे मुफ्तियों को नहीं मालूम मोता मंजे मालूम था लोग छोड़ना का तो बहुत छोड़ती लोग ऐसा बैठे तो छोड़ना शुरू करते ही हमारे मुफ्ती असलम साहब ये वाकया सुनाते थे
लोग छोड़ने में देखो कैसा फेमस सिंह होगा। 2-4 दोस्त बैठे थे और आपस में बातचीत कर रही, क्या को उसमें एक जना बोला, कभी कभार होता ना अपना पावर दिखाने के वास्ते, बेटा तुझे मालूम नहीं हमारे बाबा जो हमारे दादा जो थे ने वो इतने बड़े मालदार थे हमारे दादा, उन्होंने जो घोड़े पाले थे ना, घोड़े बैलाना भैंसा बकरे, वो जो शेडिश ना बोलते हम यहाँ, वो जो शेड उन्होंने बकरे घोड़े पाल को रखे थे, वो शेड इतना बड़ा था, एक घोड़े का बच्चा पैदा हो को ये धेली से शुरू कर को दूसरी धेली तक जाते जाते बुढ़ा हो जाता, इतना बड़ा खाली शेड था गया गोड़न। उन्होंने बोले अब्बा इतना बड़ा था क्या? उन्हें बोला तुम्हारे बाबा दादा क्या है? हमारे दादा बड़े अल्लाह वाले थे। बोले वो कहते हैं अल्लाह वाले भाई, कभी बारिश होती तो होती, नहीं हो तो उनके पास इतना बड़ा डंडा था, ऐसा हालात तो बादल में से बारिश बरसा लेते थे। उन्हें पूछे डंडा तो था बरसा लेते बराबर, लेकिन इतना बड़ा डंडा कहाँ रखते थे? वो तुम्हारा दादा का शेड नहीं उसमें रखते थे क्या? कहाँ रखते थे? अब बैठे तो ऐसा छोड़ती हमें कहीं बोलो, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि हर चीज लिखी जा रही है, हमारा बोलना लिखा जा रहा है, हमारा करना लिखा जा रहा है, हमारा सोचना भी लिखा जा रहा है। हदीस पाक में आता कोई बंदा बैठकर, अल्लाह देखो कितना मेहरबान है बंदों पर, ऐसे अल्लाह को छोड़ को हमें कहां से ले गए? जहां तलाश करना अल्लाह को वहां नहीं तलाश कर रही, दुनिया के धक्के खा रही। आप एक 200 पेज की कॉपी उठा लो, को शुरू पेज से शुरू करो लिखना, 0 0 0 0 0 लिखते लिखते 200 पेज के आखिर को चले जाओ, 0 कहते हुए हिसाब दोनों कहते हुए भी 0 6। अब वो 0 ले को दुनिया के धक्के खारी से नहीं, अब वो 0 के जहां शुरू पन्ने में हमें 0 लिखे, उस 0 के आगे खाली 1 लगा दो। आप देखो उस 1 की बरकत से हर 0 दूसरे से ताकतवर होता जाता है। आप वो 1 के साथ 0 को जोड़ो, बोलो कितना है 10, और एक 0 को जोड़ो 100, और एक 0 को जोड़ो, जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे मेरे दोस्तों, वो क्या है 1 की बरकत से वो हर 0 जो है ताकतवर होता जा रहा है। तो वो 1 कौन है बोलो भाई? अरे बोलो ना, अल्लाह। ये तो समझाना चाह रहा हूं मैं, वो 1 है अल्लाह। उसे छोड़कर पूरी दुनिया के धक्के खा रही, फलां के पास गए तो काम हो आता है, फलां के पास गए तो। मैं परसों एक जुमला लिख को डाला था यूट्यूब में, हमारी कौम उन लोगों के पीछे दौड़ रही है जो दूसरों के दुकान मकान के लिए बंदिश दे रही है, अपने घर के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा रही है। हमारी कौम उन लोगों के पीछे दौड़ रही है। एक साहब आ गए थे, क्या जी तुम्हें किसे बोले से गए? बोले तुम्हारा नाम लेकर नहीं बोले ना, मैं समझ में आया बस लिखा सो होता चले, हालांकि उन्होंने थे सो समझ गए माशाल्लाह तुम्हें लोग। तो अगर नहीं करे तो वो अल्लाह पाक लगाता है। जिंदगियां लग रही लोगों के, समझ में नहीं आ रहा है कहां जाना, ऐसे रब को छोड़ को पूरी दुनिया के धक्के खा रही, ऐसे रब को छोड़ को जो एक अदा पर मान जाता है, ऐसे अल्लाह को छोड़ को दुनिया के धक्के खा रही, दुनिया के पीछे दौड़ रहे, कहां कहां चले जा रही। नमाज जैसा अहम फरीदा छोड़कर लोग क्या है कारोबार में मस्त हैं। अजान हो रही देंगे होगी, इसलिए मैं पहले भी बताया था आपको, 3 कामों में कभी भी देर न करो। उलमा फरमाती 3 कामों में कभी देर ना करो। सबसे पहले जब कहे अजान हो जाए, जब किसी चलते हुए रास्ते में लड़की पर नजर पड़ जाए, फौरन नजर झुका लेना, देखते ही फौरन क्या करना, सो नजर झुका लेना, बोले गुनाह माफ है। अगर पहली नजर पर गुनाह माफ, फिर नजर देखे तब जाकर फरिश्ता गुनाह लिखेगा। हमें वो होशियार पटे, पहली नजर पर गुनाह माफ, टर्निंग होते देखते रहना, ऐसा नहीं कि भाई पूछो उलमा से, पहली नजर पर गुनाह माफ, अचानक भूल से पड़ जाने से देखना, आपको देखे तो नहीं। एक अल्लाह वाले खड़े को ही कुछ औरतें ब्याह के साथ गुजर रही थी, देख को बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, देखो हजरत अस्तगफिरुल्लाह कैसी बेहयाई से जा रही। हजरत ने कहा अल्लाह तो अपने ऊपर पर, तू देखे कहीं को, तू देखे कहीं को भी, तू अपने ऊपर पढ़ ले। समझ में नहीं आ रहा हूं। तो पहली नजर देखते ही फौरन, इसलिए बड़े फरमाते हैं जब गैर महरम पर नजर पड़ जाए फौरन नजर को नीचे कर लो, वरना शैतान जिना तक ले जाकर छोड़ देगा। और पूछो उल्मा से, जिना सिर्फ करने से नहीं, जिना देखने से भी होता है, सुनने से भी होता है। फौरन नजर को नीचे कर लेना। और दूसरी बात फरमाए, जब किसी का जनाजा तैयार होकर मस्जिद में आ जाए, फौरन नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दो, वरना शैतान शिर्क व बिदअत में मुब्तला कर दे। मरे सो फलां की बीवी, मरे सो फलां की अम्मी, मरे सो फलां की बेटी, फलां की बहू, फलां की बहन, देख रहे सो पूरा मोहल्ला। जब घर वाले भी बोलते रहते हैं, दिन है जिंदगियों में
आओ भाई आखिरी दीदार कर लो भाई, कौन तक देखने वाला है तो देख लो। कहते बेहयाई है। उलमा से नहीं पूछते हमें, बेहयाई। और ये बड़े बड़े दाढ़ियां रख लो कि हमें जारी लेन में, जरा हटाओ भी कपड़ा, जरा दिखाओ। पूछो उलमा से, किसे एक गैर महरम जिसे दफन होते नहलाने के बाद उसे फौरन छुपाया जा रहा है। हाँ, बाप है, कोई करीबी भाई है, रिश्तेदार, वो देख रहे हैं, लेकिन ये कितनी बेहयाई हमारे माशरे में हो रही है। आइए किसी मस्तूरात का जनाजा मस्जिद में आ रहा है, पूरा मोहल्ला मिलके देख रहा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है, लेकिन किसी को समझ में आ रहा है कि ये सवाब हो रहा है कि गुनाह हो रहा है। हमें पूछने की भी हमें तौफीक नहीं, हमें मुफ्ते आवाज कभी कभार। मैं बोला सो सही छोड़ो हजरत, कभी कभार ऐसा होता है, हमें बोला सो सही हजरत। और तीसरी बात फरमाया, जब आजान हो जाए फौरन नमाज की तरफ चलो, वरना शैतान खजा तक लाकर छोड़ देगा। फौरन नमाज की तरफ चलो। अब अजान होगी, दो चार दोस्त बैठे बैठ को बातें कर लगे, ऐसे हो गए। अब उसमें दीनदार वाला रहा तो उन्हें बोलता अजान नहीं थे, चलो भाई जिंग चल बेटे, चल भाई नमाज को जिंगे तो चलो बैठो भाई। अब ज्यादा माहौल से हटकर रहा तो बैठ रहे, बीच में अजान हुई, सो कहां चले आ रहा था। अब ऐसा बैठते ऐसा बैठते लोग नमाज पढ़ ले बाहर जाते रहते। नमाज होगी, ये हमारे इमाम साहब को बड़ी जल्दी नहीं, बहुत जल्दी पढ़ा, कहा इनको भागना रहेगा, आराम से पढ़े होता नहीं। इमाम साहब की गलती नहीं, उनकी ना भी गलती, जल्दी पढ़ा ले सो। इसलिए तीन कामों में कभी भी देर ना करें। जब मस्जिद में जनाजा आ जाए फौरन नमाज जनाजा पढ़कर दफन करें। जब किसी गैर महरम पर नजर पड़ जाए फौरन अपनी निगाहों को नीचे कर लें। और जब मेरे दोस्तों आजान हो जाए तो फौरन मस्जिद की तरफ आ जाए। ये वो अमल है नमाज का जिसे अल्लाह पाक ने देने के लिए अल्लाह के नबी को आसमानों पर बुलाया गया। आज वो नमाज छोड़कर के हम मस्त हैं, जुम्मा पढ़ने को समझ नहीं। हाँ, मैं मुसलमान लो हजरत, तुम ना मालूम नहीं। पहले सब में मैच ना आता जुम्मा में, हमारी मस्जिद में बुजुर्ग आती, जुम्मा के किस टाइम आते सुन, मैं तो जुम्मा में एक टाइम उन आती तो मैं कहाँ खड़े खाता भी जाते मस्जिद में दहलीज के नहीं खड़े खाती। मैं आया तो मुझे देख लो कुछ ज्यादा सेंट्री होगा। अब क्यों वो छपना सौ मजाक सामने खड़ा तो क्या जी मोदो साहब तो मैं दिखते ही नहीं, जवारम पर कहानी चलाते सो क्या बोलते सो आते इस बेचारे वारम में 21 टाइम लगलो हती ना भाई, जो पाबंदी से आने वाले दिखती ना, इमाम सब मौसम देखती ना, कौन आ रही कौन नहीं होगा। मैं बोलता मैं ऐसा जरजे में था, जरा नहीं था, फिर था मुझे बढ़िया। ये हाल है हमारे लोग। नमाज एक अहम फरीजा, अजान हो जाए कारोबार को छोड़कर। देखो साहबा की जिंदगी, कोई आए देखा अजान हुई तो क्या देखते हैं कि दुकानें बंद पड़ी है, दुकानें छोड़कर लोग यह मस्जिद की तरफ दौड़ रहे। इन्हीं के ऊपर तो अल्लाह पाक ने कुरान की आयतें उतारी, इन्हीं की इस अमल पर अदा पर अल्लाह ने आसमान से कुरान की आयतों को उतारा। आज देखो हमारा हाल, अजान हो रही है, हम अपने कारोबार में मस्त हैं। रमजान जैसे मुकद्दस महीना जिसमें तरावी के एक सजदे पर 1500 नेकियां, हमारे जवानों को देखो बाहर पबजी खेलने बैठे रहते। मैं एक बार ऐसा अजान से पहले आया, वजू से तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत रहती है हमेशा रहने की। अजान दे दल बैठे, कुछ पेशाब का है तो चलो भाई दुरुस्त से फारिग हो जाएंगे, फिर से ताज़ा वजू बना लेंगे। ऐसे जाकर बाथरूम में बैठा, बाजू मारो उसे, मैं घबरा होगा, ये क्या रहा भाई, और भाई साहब बोल रहे हैं, परेशान होगा। अब जल्दी बुजुर्ग से फिर बाहर आया तो अंदर अभी आवाज आने को साइड में आ रही, उधर खड़े देख रहे थे। मैं कौन किए वह अंदर बैठ पैसा बकरा दरख्त आया, देखेंगे खड़े करते माशाल्लाह, जवान हाथों को ग्लोव्स भी डाल को है माशाल्लाह। अब अंगूठे ग्लोव्स आ गई, ये तो दर्द नहीं होता, फास्ट तक खेलने। हमारे उलमा चीख मार मार कर बोले ऐसे गेम ना खेलो जिससे तुम्हारा जहन खराब हो जाए, हराम कहला रहे ऐसे गेम खेलने से जिससे तुम्हारा जान का भी नुकसान हो रहा है, ईमान का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन देखो माशाल्लाह मेरा नौजवान मस्जिद के हिस्से में बैठ कर पबजी गेम खेलते हैं। ऐसे गेम खेलो, ऐसे खेलो जिससे आपके कहे सेहत बढ़े, एनर्जी बढ़े। लेकिन आज हमारे दोस्तों, हमारे जवानों की जिंदगी कहाँ चल रही, जरा भी इसका हमें एहसास नहीं हो रहा है। अजान हो रही है, कानों में तक जू नहीं रोक रही उनकी, चलो भी दे रही होन दे लो भी जेंगे लो भी, नमाजें की नमाजें, जनाजे निकल रहे नमाजों। लेकिन दूसरा कोशिश करें इस मुबारक महीने में, यह रमजान का महीना हमारे प्रैक्टिकल के लिए आता है, ट्रेनिंग के लिए, कि जैसी जिंदगी हमारी, इसलिए बड़े फरमाती जिसका जुमा का दिन सही गुजरेगा उसका पूरा हफ्ता सही गुजरेगा, और जिसका रमजान का महीना सही गुजरेगा पूरा साल खुशहाल गुजरेगा। अब फैसला हमारे ऊपर है। इसलिए खुद भी नमाजी बनना, अपने घर वालों को भी नमाजी बनाना, अपनी घरवाली को भी नमाजी बनाना। आपके एक बोल पर बेचारी पूरे घराने को छोड़कर, पूरे खानदान को छोड़कर आपके निकाह में आ गई, सिर्फ आपके एक बोल पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, कैसे पूरे खानदान को छोड़कर बेचारी आपके निकाह में आ गई।
उस बेचारी को जो हम कहें जन्नत की तरफ ले जाने के वजह हम जहन्नम में ढकेल रहे। सुबह गए तो खाना, शाम को गए तो बिछाना। ये पूछने की तौफीक नहीं हो रही है क्या बेगम नमाज पढ़े क्या, ज़ोहर पढ़े क्या, फजर पढ़े क्या। हिम्मत नहीं, खामोश हजरत, उसे पूछो कौन सी मुसीबत में लेंगे। पूछना मेरे भैया हमारी जिम्मेदारी है। हम घर जाए तो पूछे क्या आप खाना आगे पीछे जरा कर दो, जरा टाइम आगे पीछे, कोई मसला नहीं, लेकिन नमाज वक्त पर पढ़ो, उनको भी तरजीब देना। वरना एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में लेकर जाएगी। एक उसका बाप होगा, एक उसका बेटा होगा, एक उसका शौहर होगा, एक उसका भाई होगा। हम में से कोई बाप भी बैठा है, भाई भी बैठा है, बेटा भी बैठा है, हाँ शौहर भी बैठा है। किसी की बहन हाथ पकड़ लेगी, किसी की बीवी हाथ पकड़ लेगी, किसी की माँ हाथ पकड़ लेगी, हाँ किसी की बेटी हाथ पकड़ लेगी। या अल्लाह, जब भी दुनिया के हम कोई काम करते थे कभी आगे पीछे होता, माँ बहन की गाली देता था, बुरा भला कहता था, या अल्लाह हम हर काम कहे इसके डर की वजह से पूरा कर देते थे। कभी ये कहना, हम ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ ले, सही रास्ते पर चल, इसने हमें कभी ये नहीं कहा। ये हमारी पहली जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों, हम खुद भी नमाजी बनना, अपने घर वालों को भी नमाजी बना। भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। उसके लिए घरों में जाता अच्छे अंदाज से जाना। जैसे पूछो उलमा इकराम को, घर में जाते हुए सलाम करना सुन्नत है, घर से बाहर आते हुए सलाम करना सुन्नत है। घर में जाते हुए सलाम कर को जाओ, घर की बाहर के पूरे टेंशन बाहर छोड़ डालो, बाहर के पूरे टेंशन बाहर छोड़ो, कारोबार के, बिजनेस के, आपके फ्रेंड सर्कल के, अपने दुनियावी मामला के पूरे टेंशन बाहर छोड़ो। घर को जाते हो मुस्कुराते हुए अच्छे अंदाज से घर में जाओ। हमारे इंतजार में कोई माँ भी होगी, शायद मेरा बेटा आएगा, उसके साथ बैठकर मोहब्बत से खाना खाएंगे। रात को 12 बजे घर को जा रही, क्या हाल होना बोलो बेचारे। बूढ़ी अम्मा है, बच्चा जल्दी आएगा तो खाना खा लेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी मना लग 12 घंटे घर को जा रही। बेटा आ रहे खाना खा लेंगे, अब भी खा लगा है सब दोस्त में खा लग, सो जो अब इतना देर होगा, चलो ठीक है सुबह खा लेंगे। घर वाली भी इंतजार में है, यजमान आ गए तो आपको कहीं बाहर खाना है, घर में फोन कर दो, देखो बेगम मैं जरा बाहर हूँ दोस्तों के साथ, शाम में खाने को नहीं था, आप खाने से फारिग होकर आराम से सो जाओ, मैं खाना खा कर आता हूँ, आप बोल डालो। ये सारा दीन है मेरे दोस्तों, हमें ऐसे दीन नहीं समझ रही सिर्फ नमाज पढ़ लेना। हमारे बड़े फरमाती हैं जो अमाल हमारे मस्जिदों में नजर आ रहे हैं, देखो एक अल्लाह वालों से किसी ने पूछा, ये एक बंदा पूरी उम्मत का मसला हल करा दे। उन्होंने पूछा, हजरत अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मकाम है, ये मुझे दुनिया में रहकर कैसे मालूम होगा। सबको मालूम होना ना ये चीज, मेरा मकाम अल्लाह के यहाँ क्या है, ये दुनिया में रहकर मुझे कैसे मालूम होगा। उन अल्लाह वालों ने कहा, तू अपनी जिंदगी में नजर डाल कर देख, तू अपनी जिंदगी में देख कि तूने अल्लाह के दीन को क्या मकाम दिया होगा। दुनिया में तूने जो मकाम अल्लाह के दीन को दिया होगा, वही मकाम तेरा अल्लाह के यहाँ होगा। आज जो दीन हमारी मस्जिदों में हमारी जिंदगी में नजर आ रहा है, वो बाहर की जिंदगी में हमारी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा है। जो दिन आज हमारी मस्जिदों में हमारी जिंदगी में नजर आ रहा है, वो दिन आज हमारे कारोबार में नजर नहीं आ रहा है। जो दिन आज हमारी मस्जिदों में हमारी जिंदगी में नजर आ रहा है, वो दिन आज हमारी शादियों में नजर नहीं आ रहा है। जो दिन हमारी मस्जिदों में हमारी जिंदगी में लोगों को नजर आ रहा है, वो हमारे मामलात में नजर नहीं आ रहा है। हमने दीन को मस्जिद के हद तक बना दिया है, वो आज हमारे घरों में नहीं, हमारे कारोबार में नहीं, हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं, हमारी शादियों में नहीं। वही रस्म बेढंगी जो पहले थी अब भी थी, यहूदियों की, नसरानियों की गलत तरीकों पर जिंदगी बसर होती है। और समझ रहे साहब, हमारी जिंदगी ईमान वालों के साथ गुजर रही है, बल्कि हमारी जिंदगी से दीन कोसों दूर चला गया होगा। इसके लिए मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी में दीन आना, हमारे घर के माहौल में दीन आना है हमारी जिम्मेदारी। आप घर बाहर हैं किसी काम में, घर में फोन करके बोलो हमें आने में लेट होती है, आप नमाज पढ़ो, खाना खाओ, सो जाओ। घर में जाओ तो अच्छे अंदाज से जाओ, अच्छे बाहर का पूरा टेंशन बाहर छोड़ दो। आप घर में जाकर बैठे मोहब्बत से बात करो, खाली निवाला मुंह में रखते ही माशाल्लाह बेगम बड़ा अच्छा बने जी, साल्ला क्या टेस्ट है जी, तुम्हें पका इसकी। आपका एक जुमला बिचारी के पूरे दिन के थकान को दूर कर डालता। हमें करते नहीं, वो रामण्णा क्या गोपाल क्या ढेर चंबा क्या खा तारीफ करते, बा क्या घी डाले थे नहीं उन्हें, बड़ा टेस्ट था भी, मसाला बड़ा जबरदस्त था भी। अरे बाहर तारीफ करी तो आप घर वालों की भी तारीफ करो ना। हक तो यहाँ था, अम्मी की तारीफ करो, अम्मी तुम्हें पके क्या, अम्मी माशाल्लाह ये उम्र में इतना अच्छा पका लेती, जबान कुछ नहीं बोलती, माँ का दिल अंदर से होता मेरा बच्चे मैं तारीफ कर रहा ना। ये सारी चीजें रहते तो घरों में भी दीन आता, सो घर वाले भी नमाजी बनते सो। वरना नहीं, बाहर का गुस्सा अंदर घर में भी आ रहा है, फिर मेरे दोस्तों वो दिन जिंदगी में नहीं रहेगा। कुछ तो करना, अम्मी तुम्हें पके क्या हो,
कांत अम्मी पका इष्टम जोरू की तारीफ करता ले वो इलेक्शन ही छाड़ जाती थी अम्मी पका इष्टम को बीवी पका इष्टम को अम्मी की तारीफ करता ले और तू जाको जोरू छोड़ता है कि रे अम्मी पका इष्टम को जो है बीवी पका इष्टम को अम्मा की तारीफ करता ले तुम्हें जाकर अम्मा छोड़ दी क्या फौरन इसलिए पूछो करना कौन पकाए बेगम तुम्हें पकाए माशाल्लाह बड़ा अच्छा था भाई अम्मी तुम्हें पकाए वो दिल खुश होगा मैं आसाला खा गो एक मौलवी साहब बोले बहन मैं घर को गए तो घर वालों की भी तारीफ करो उनकी भी हिम्मत अफजाई करो उनका भी दिल जीतना वो इसीलिए घर गए तो उनकी तरह तारीफ करो तो एक आदमी हमारे जैसा घर को जाकर बैठा बीवी दस्तरखान ला को मुझे खाना ला को रखी अब निवार उठा घूम में रखते सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर बीवी बोली क्या जो इतना जिक्र कर डाल रही इन्हें बोला जिंदगी में पहली बार बेगम ऐसा सालन खाया सो न सिर पकड़ लिया ऐसा क्या रहा मुसीबत ये बोले क्या जी हुआ नवे जी आज कपड़े कपड़े धोदा हाथा में टाइट हो गए थे बाजू घर से साला ले तुम्हें तारीफ कर रही सो क्या ले पूछ को करना कौन पकाए अम्मी तुम्हें पकाए क्या बेगम तुम्हें पकाए क्या फिर जो आपस में मोहब्बतें बढ़ती प्यार बढ़ता है मोहब्बतें बढ़ती है हाँ कभी काम से जल्दी आ गए दुकान से जल्दी गए घर के पास घर को गए माँ बाप इंतजार में रहती मेरा बेटा आता कुछ मोहब्बत की बात करता है दुकान से निकले तो आप घर के दुकान में चले गए रही ध्यान से निकलो दुकान से सीधा घर के दुकान में रूम हते ना हमारा फॉलो ना एंट्री माँ बाप के साथ भी बैठना उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात करना उनका हाल पूछना ये सारा दीन है मेरे दोस्तों हमने इसे दीन नहीं समझा हमने इसे बोलो हमने इसे दीन नहीं समझा घर वाले को अच्छे अंदाज में पुकारना प्यार मोहब्बत से पुकारना अल्लाह के नबी अलग अलग नामों से पुकारते थे हमें भी पुकारो हमें नहीं पुकारते खामोश हजरत उसे ज्यादा सिर मया ज्यादा लाड़ दिए तो सिर पर चढ़ जाते आप किसे चढ़ा लेती बोलो मैं एक बार ऐसे हमारा इस्तेमा शायद पहले बोला था आपको हफ्ते और इस्तेमा में असर में बयान कर ले बैठी तो एक बड़ा नौजवानों का मजमा था तो घर की घरेलू लाइन की जिंदगी पर मैं कुछ बातें कर रहा था तो शादीशुदा लोग बहुत सारे बैठे थे मैं उनको बोला बयान में कि भैया घर वालों को अच्छे नाम से पुकारो अल्लाह के नबी अलग अलग नामों से पुकारते थे तुम्हें भी जरा अच्छे अच्छे अंदाज से आधे नाम से जरा प्यार से सब पुकारो मोहब्बत पड़ती है तो एक साहब बोले बयान खत्म होगा दूसरे दिन एक साहब को देखा मेरे पास आया ये हिस्सा पूरा फूक गए मुझे क्या रहा ऐसा हो गया तो खामोश हो गई तू भी क्या भी तो तुम्हें कल बयान में बोले क्या पुकारा को मेरे घर वाले हम बीड़ा मतलब बड़ी थी मैं ऐसे पुकारा तंबाल फिरका मरदा निकल मैं बोला पुकारे क्या पहले बोलो तो उन्हें बीड़ा मतलब बैठी थी मुझे एक अच्छी दिशी में हमशीरा का पुकारे हमशीरा का तो क्या भी बहन आप जोरू को जाकर इन्हें भान पुकारे छोड़ती है मैं बोला शुक्र कर भी तंबाल फिरका मारे दूसरा क्या फिरका मारी नहीं सो गए वो भी मालूम नहीं क्या पुकारना अल्लाह की नबी अपनी बीवी को हुमेरा पुकारते थे अलग अलग नामों से पुकारते थे ये सारा दिन सीखना घरों में भी जिंदगी लाना तभी तो मेरे दोस्तों घर वाले हमारे लिए दीन पर चलने का जरिया बनती नमाज का टाइम हो तो घर वाले उठाते उठो जी जाओ जी नमाज का टाइम होगा उनको नहीं तो ठंड हो रही है ओस में कहाँ जाती है तो मैं सो जाओ फिर दुकान पे लेट होता थपक को सुला जाती अगर उन्हें मालूम होगा तो नमाज को वक्त पर उठाएगी जाओ जी टाइम होगा उठो नमाज को जो बच्चों को उठाएगी घर वाली हमारी जिंदगी में जितना दीन होना जरूरी है मेरे सो हमारे घर वालों की जिंदगी में भी दीन का होना जरूरी है देखो एक आदमी को लकवा मार डाला हाथ से तो जान निकल गई अब वो बेचारा वो हाथ और पैर को साथ लेकर चल नहीं सकता काट को फेंक नहीं सकता जमीन पर घसीटता हुआ जा रहा है वो पूरे जिस्म पर हाथ और पैर क्या बन गया बोलो मुसीबत बन गए पूरे जिस्म में जान है खाली वो हाथ और पांव से जान निकलने की वजह से वो हाथ और पैर इसके लिए पूरा मुसीबत बन गया मुसीबत ऐसे ही हमारी जिंदगी में दीन है घर के माहौल में दीन है तो वो घराना मेरे लिए मुसीबत बन जाता मुसीबत ना छोड़ सकती ना कहे साथ लेकर चल सकती मुसीबत बन गया इसलिए हमारी जिंदगी में दीन लाना अपने घर के माहौल में दीन लाना बच्चों की जिंदगी में छोटे छोटे बच्चों को समझाओ बिठा कर बोलो रात को सुलाओ तो बच्चों को ये तरगीब देखो नहीं जल्दी सो जा सुबह स्कूल को जाना बच्चों को ये तरगीब देकर सुलाओ बेटा जल्दी सो जा सुबह तुझे नमाज के लिए उठना शुरू दिन से बच्चों को तरगीब देना ये माहौल बनाएंगे फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों वो दीन जो दिन हम चाहते हैं अल्लाह रसूल चाहते हैं वो हमारे घरों में नजर आएगा हमारे घर के एक एक फर्द की जिंदगी में नजर आएगा आज मेरे सो ये हमें करने के काम बजाय करने के नहीं करने के कामों में पड़ गए बेहुदा बातों में वक्त मिल रहा है रमजान जैसे मुकद्दस महीने में भी देखो ये मस्जिद में कुरान रखे हुए किसी के वालिदैन के नाम से किसी के रिश्तेदारों के नाम से मस्जिदों में कुरान रखते हैं लेकिन इन्हें उठाकर पढ़ने वाला तक आज मौजूद नहीं कौन की उम्र दराज आदमियां जरा घर में जाकर क्या करना हाँ बैठ कर पढ़ लेंगे हमारे जवानों को देखो आज बाजारों में बैठकर मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं दुनिया की घपचप कर रहे हैं अल्लाह के घर में बैठकर कलाम पढ़ने की तौफीक नहीं
अरे वो ऐसा कलाम जिसे पढ़ना नहीं आ रहा है, खाली मोहब्बत से उठा कर देख रही तो भी एक रुख पर एक नेकी लिखी जा रही है। ऐसे कलाम को देखने की तौफीक नहीं पढ़ना तो होटल में अखबार पढ़ना नहीं आता, खोल लग बैठे रहती, पलटा पलटा देख रहा, देखने वाला बोल रहा था क्या फास्ट पढ़ रहा था बाबू, पढ़ना नहीं आ रहा फिर भी बैठा रहता बेचारा। लेकिन अल्लाह का कलाम ऐसा जिसे देखने पर भी सवाब है। 4 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिनको देखने पर भी सवाब मिलता है। एक सबसे पहले कुरान मजीद, आदमी पढ़ना आ रहा है पढ़ो, नहीं आ रहा है मोहब्बत से उठाकर देख रही, खाली मोहब्बत से देखने पर भी अल्लाह सवाब ले करे। और दूसरा काबेतुल्लाह, वो सब कैलेंडर में बताना ऐसा देख ले एक बढ़िया नहीं, हकीकत वाला जहां पर जाकर मोहब्बत से आदमी कुछ नहीं कर रहा, कोई अमल नहीं, काबेतुल्लाह में खाली सामने बैठकर मोहब्बत से देख रहा, उसके ऊपर नेकियां लिखी जा रही। और तीसरा उलमा इकराम, ये अंबिया के वारिसिन, मस्जिदों के इमाम, हमारे खतीब, मस्जिदे के उलमा इकराम, कुछ नहीं खाली उनको मोहब्बत से देख रही तो भी सवाब। खामोश हजरत एक बोलो नको गति बदरज ने, ये भी सवाब है मेरे, तो ये तो अंबिया के वारिसिन है, इन्हें देखने पर भी सवाब लिखा जा रहा है क्या। बल्कि एक मौलाना बता रहे थे बयान में, आदमी को अल्लाह पाक उसके नामे अमल को उठाकर देखेंगे, कुछ तो नेकियां मिलेगी, क्या है इसका गुनाहों का, क्या जहन्नम का फैसला हो चुका है, देखेंगे इसका दफ्तर पूरे का पूरा खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। आखिरी दर्जे पर इसे ये देखा जाएगा, देखो कम से कम ये उलमा की सोहबत में तो बैठा करता था, इनकी सोहबत से भी अल्लाह मगफिरत कर देता है। अब इन्हें देखने पर भी सवाब लिखा जा रहा है। और चौथी बात फरमाया कि माँ बाप को सिर्फ उनको मोहब्बत से देख करें, हज और उम्रे का सवाब लिखा जा रहा है। अब उनकी खिदमत करे तो कितने माँ बाप ऐसे हैं आज औलाद की वजह से परेशान थे, नहीं हुए थे, दुआएं कराते थे उलमा करम, हजरत दुआ करो अल्लाह नेक औलाद दे दे, आज हो गए हैं तो इतने नाफरमान की दुआ को ये सोच रहे हैं कि कहीं को तो भी अल्लाह ऐसी औलाद दिया थी। आज हमें खिदमत करते हुए डर को, हमें इनकी करे तो दूसरे की बात में हम ना करती थे। एक मरतबा हमारी अहलिया को लेकर अस्पताल गया था, वो लेन में खड़े मेरा नंबर आने टाइम पर एक साहब गाड़ी में ऑटो में सोच रहे, एक बूढ़ी अम्मा को हाथ पकड़ ऊपर बुला लगे, हजरत जरा छोड़ दो, हजरत जरा बैठने होता नहीं, बोले ठीक है जाओ भी, उनको भेज बिठा दा जा। अब बिठा दे अच्छी बात है, दिखा ले, लेकिन दिखाते दिखाते बोल रही है डॉक्टर साहब जरा अच्छा देखो हमारा अम्मा को, हमें उनको देखे तो हमारा बच्चे हम ना देखती गते, ये हाल हमारा हो। आज हमारे बच्चे हम ना देखती कि नहीं कि ये परेशानी में माँ बाप की खिदमत कर रही, सो अल्लाह का हुक्म समझ कर नहीं कर रहे, तभी तो हमें खत्म पर ठोकर खा रहे। माँ बाप के साथ जैसा सुलूक हमें करती, आने वाली नस्लें हमारे साथ वैसा करती। एक आदमी जो है बात बोलकर खत्म कर दी, एक आदमी जो है अच्छा खासा माशाल्लाह पढ़ा लिखा था, अब कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मोहब्बत का जमाना ना, मोहब्बत का तो मालूम नहीं मालूम, जानते भी नहीं रहेंगे। तो बहरहाल मोहब्बत ऐसी होगी, एक लड़की से मोहब्बत हो गई, निकाह हो गया। अब लेकर वो आया दुल्हन को घर, बाप बोला मेरी तमन्ना थी तुझे अच्छी जगह निकाह करूं, पर तेरा मुकद्दर यहाँ था, मैं क्या, अब एक जमाना ना भी चल रहे, सो पहले अम्मा बाबा देखते थे बच्चे कर लेते थे, सो अब बच्चे देख लेते, पहले सेटिंग नहीं का तो बोलो चले तो नहीं रहो रहा बात करेंगे, अब बच्चे सेटिंग कर लेते, अम्मा बाबा खाली सामने, हिम्मत को आना, सो ये हाल हमारा होगा। अब बहरहाल बात कहां से कहां चली, अब बाप बोले चल भाई तू पसंद कर को कर लिया, बहरहाल खुशहाल रहो, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। चंद दिन गुजरे, उससे एक बेटा भी होगा, वो बेटा 1 साल 2 साल का होगा। अब देखते देखते उम्र होगी तो जरा हरकतें शुरू होती ना, बीमार होना, रात भर खांसना। अब बीवी बोली तुम्हारा अब्बा रात भर खांसते रहती, ये परेशानी से नींद भी नहीं आती, उठा ऊपर के कमरे में रख दो, हमें तब सुकून से सोएंगे। हमारे हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला बोलते थे, वो आदमी जमीन के ऊपर रहने से बेहतर है जमीन के नीचे चले जाए जो अपनी जिंदगी का मशवरा बीवी के मशवरे के साथ करता है, अपनी जिंदगी का क्या रुख जो है अपनी बीवी के मशवरे के साथ गुजारता है। मानना उनकी बात है, उनकी भी काम मानना, हाँ मानना, हालांकि क्या करे तो उन्हें टेढ़ा बोलते, सो क्या तब करो नहीं लो जी, फिर भी मानना, काम मान लेना, हाँ नहीं जगह, जैसे हमारे बड़े बता रहे क्या तब करो, कभी कभार नाम रखती। वो एक लतीफा है किताब में, एक आदमी मरने की उम्मीद कर लेते, नहीं भी मेरी घरवाली से सबसे परेशान हो गया, क्या तब कर को मर जाना, जाकर पहाड़ पर चढ़िया, अब कुछ नहीं देखा तो नीचे बुजुर्ग बैठे थे जिक्र कर लेते, इन्हें सोचा मरने से अच्छा है नीचे जाकर इनके जैसा बन जाएंगे, आको बैठे हजरत मैं भी तुम्हारे जैसा बनना, चल भाई बैठ जाओ, उन्हें अल्लाह अल्लाह कर लो को बैठ गया। चंद दिन गुजर गए, उन्हें पूछे हजरत पूछे क्या बेटा क्या करो, हजरत मेरे लिए दुआ करो, क्या ऐसी दुआ करो कि मैं आसमान में उड़ता हुआ जाना। बहुत अच्छा दुआ कर डाले, करामत इसके अंदर आ गई, आसमान में उड़ता हुआ। अब एक मरतबा आसमान में उड़ने को ऐसा आ रहा है, उसकी घरवाली लतीफा है, वो उसकी घरवाली चावल पछाड़ ले ठीक है, देखिए तो उड़ने को जा रहा है, इन्हें देख को बोली माशाल्लाह जवाब मर्द को तो इन्हें रहे असल में क्या, हालांकि इसका शोहर इन्हें
इन्हें असल में जवाब मर्द क्या मस्त उल्लग जा रहा है, इसके कान में आवाज पड़ गई, उतर को नीचे आया, ऊपर आता इन्हें देख के कान गया तो माठी में लग, फिर आ रहा नहीं। बोले क्या ये देख लें सुन, तो अब भी एक यहाँ से एक जवाब मर्द उड़ता हुआ आसमान को गया, उसे देखो वाकई उन्हें जी जवाब मर्द, तुम ना मालूम क्या कौन को, तो मैं जी उसे तुम्हें बिंगा उठते थे सुकई। क्या भी करो नाम रखती है बेचारी, लेकिन काम मानना उनकी बात हाँ मानना, नई जगह छोड़ डालना, समझ में आ रहा है कि तो बड़े फरमाते ना वो टेढ़ी फसली से बनी है, ज्यादा फोर्स करे तो तोड़िया ते छोड़ डाले तो अभी बिंगी हो जाती, समझ में, साथ लेको चलना सो। तो इन्हें बीवी की बातों में आकर जो है अपने अब्बा को उठा कर ऊपर के कमरे में रख डालिया, अब मजे से जिंदगी। अब्बा को वो हाफिज रोमा में बेल रखे रहती तो तो नौकर भाग लगाना, ऐसी बेल दे डाले, बोले अब्बा आपको पानी की जरूरत पड़ी बेल मारो, मैं पानी ले लगाता हूँ, खाने की जरूरत पड़ी बेल मारो, खाना ले लगा जाता। बोले ठीक है। अब बाबा को पानी की जरूरत पड़ती है बेल मारता, बेटा ऊपर पानी ले लेको जाता, अब्बा को खाने की जरूरत पड़ती बेल मारता, बेटा खाना ले लेको ऊपर जाता। ये मंजर जो है, इसका जो छोटा बच्चा था 2-3 साल का, इन्हें देख लो पूरा मंजर। अल्लाह की शान देखिए, इस बाप के मुकद्दर में मौत थी, वो बूढ़ा आदमी का इंतकाल हो गया, नहला धुला कर कफन पहना कर नमाज जनाजा पूरा दफन कर डाले। वो अब बेटा घर को आया, अब्बा तो चले गए, क्या करना, ऊपर की चीजें उनके कपड़े वहीं किसी तरह बांट डालेंगे, ऊपर जाकर पूरी चीजें समट उठा लगा तो बेल नहीं मिली। धड़े बेल क्या होगी भाई, चलो स्टील की इतना सुनने की ना कोट की उठा ले, छोड़ो। नीचे उतरा तो इसका जो 3 साल का जो बच्चा था, वो बच्चा वो बेल पकड़ ले को खड़ी। इन्हें बोले हो बेटा तू उठा ले सो बेल। हाँ अब्बा कहीं को तुझे, अब्बा मैं देख रहा था कि आप जो है दादा अब्बा को ऊपर के कमरे में रख डाले थे और ये बेल दे डाले, दादा अब्बा को जब भी जरूरत पड़ती आके है दादा अब्बा बेल मारे तो आप पानी पहुंचाते, बेल मारे तो खाना पहुंचाते, मैं भी बड़ा हो जाता, मैं भी कांटे भी शादी कर ले को आता हूं, और ये कहे आपको मैं ऊपर के कमरे में रखकर ये बेल मैं आपको दे डालता हूं, अब्बा आपको जब भी जरूरत पड़े तो बेल मारना मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। वो चीख मारकर रोने लगा, मैंने जो मेरे माँ बाप के साथ सुलूक किया है इसका मुझे कोई फायदा नहीं, लेकिन इसका असर मेरी औलाद पर जरूर पड़ा। करो, माँ बाप वो किताब है जो लिखते हम हैं, पढ़कर हमारी औलादें हमें सुनाती है। करो, अल्लाह पाक दे डाले, जिनकी है अल्लाह उन्हें उनकी उम्रें दराज फरमाए, जिनकी चले गए हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मेरे से एक मौका अल्लाह पाक ने दिया, ये मुकद्दस महीने, परसों लिखा मैं जुमला, जिनके माँ बाप नाराज हैं, ये मुकद्दस माह रमजान का महीना भी उसकी मगफिरत नहीं करा सकता। राजी कर लो मेरे दोस्तों, राजी करने का महीना है। नाराज हो गए हाथ पकड़ लो, कोई मसला नहीं, माँ बाप से बढ़कर कोई दुनिया में है नहीं। अगर वो नाराज हो गए पूरा मसला बिगड़ गया। नहीं हजरत तुम ना मालूम नहीं, मुझे बड़ा धोखा दे डाले, भूल जाओ, माँ बाप पैर पकड़ लो, नहीं माने पैर पकड़ लो, माफी मांग लो। माँ का दिल 70 माओं से ज्यादा, अल्लाह बाप से तशबीह देकर नहीं, माँ से मुखातब होकर बोलिया तुम्हारी माओं से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आज माँ बाप से नाराज हो। एक बच्चे परसों नौजवान आ गए मस्जिद में, बैठ गए, क्या गाय जरा में क्या हुआ, हमारा बाबा आप पीछे जाना जी रोड में, देखो मेरी बद्दुआ करती। बोले तब पर क्या ऐसा बोल रहा है, क्या जी ये परसों पूछा जाके इधर है क्या कासम जो तो नहीं देते कहते, तू कमाले जा रहे कहते हैं, उनके वजह से क्या कमर समेत। नौज़बिल्लाह, ये दिन ना होने का नतीजा। आज माँ बाप को छोड़कर बच्चे समझ रहे कि हमें माशाअल्लाह मसला हल होगा, हमें काम नहीं, खुदा के कसम माँ बाप नाराज है तो पूरा मसला बिगड़ गया। राजी कर लो, मौका अच्छा है। माँ बाप कितने भी गुस्से वाले होंगे, आप खाली सामने में जाकर बैठो, मान लेती जर्रा मियाँ बीवी में झगड़े होती, माँ बाप में भी झगड़े होती, हो जाता, क्या भी करना होता, जर्रा ना जाकर बैठो उनके सामने हाथ जोड़ कर, क्या कि जरा 2-4 आंसू निकाल डालो, फौरन गले लगा ले, फौरन गले लगा ले। माँ से बढ़कर भला देखो, याद रखना दुनिया में माएँ बहुत मिलेगी, लेकिन माँ की जो असल ममता है वो नहीं मिलेगी। एक छोटा सा बच्चा, माँ का इंतकाल हो गया, बाप दूसरा निकाह कर लिया, चंद दिन के बाद किसी ने पूछा बेटा अब तो खुश है ना, तुझे एक नई अम्मी आ गई है, दूसरी अम्मी आ गई है, अब तो खुश है? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा वो पूछने वालों ने पूछा बेटा ये बता तेरी अब आई हुई नई अम्मी में और तेरी गुजरी जो इंतकाल होगी उस अम्मी में क्या फर्क है? तो उन्हें बोलिया मेरी जो पहली वाली जो अम्मी है जिसने मुझे जन्म दिया उन्हें झूठी थी, ये जो मेरी अम्मी है इन्हें सच्ची है। बोले वो कैसे? मेरी जो सगी अम्मी है, मेरी जो जिसने मुझे जन्म दिया है, जब भी मैं कोई शरारती करता घर आता तो मेरी अम्मी कहती आज तुझे खाना नहीं देती, लेकिन जब तक मैं नहीं खाता था मेरी अम्मी नहीं खाती थी। जरा देर हो जाए तो पूरा मोहल्ला तलाश करती थी। जब भी कोई शरारती करता कहती आज तुझे घर में नहीं आने देती, जरा देर हो जाए तो पूरा मोहल्ला छान लगाती मेरा बच्चा कहाँ चला गया। बोलती थी, करती नहीं थी, झूठी थी, लेकिन हजरत ये जो मेरी अम्मी अभी नहीं आई है ये बड़ी सच्ची है।
جب بھی شرارتی کرتا ہوں کہتی ہے کھانا نہیں دوں گی تو رات بھوکا سونا پڑتا تھا، میری امی مجھے کھانا نہیں دیتی۔ جب بھی شرارتی کرتا میری امی کی آج گھر میں نہیں آنے دیتی تھی، گھر کا تالا لگ جاتا تھا، صحن میں سونا پڑتا تھا، اندر آنے نہیں دیتی تھی۔ یاد رکھنا دنیا میں مائیں بہت ملے گی لیکن ماں کی جو اصل ممتا ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہ مقدس مہینے آئے ہیں پریکٹیکل کے لیے، ٹریننگ کے لیے، آج کیا موقع ہے، بچھڑے ہوئے سے مل لو، جو غلطیاں ہیں اللہ سے معافی مانگ لو، ایک نئی زندگی اس مہینے میں اگر ہماری زندگی بن گئی، باقی رمضان کی پوری زندگی انشاءاللہ اللہ بنا دیں گے، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس کے لیے بقیہ جو دن بچے ہیں ان دنوں میں کہے جو ہماری تراویح چھوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ پابندی کر لو، اسی مہینے میں ہو سکتا ہے کہ جو گنے چنے دن اللہ کو پیار آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، کوئی ایک ادا اللہ کو پتہ جائے، اللہ ہماری مغفرت کرے، ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔